اب مجھے کیا معاملہ چاہیے بہن جی, کیا مسئلہ ہے؟ میں پن خاندار نیبر کران یہ پال ٹھیک دری کام کران تم پتہ یہ پنہ کامہ پہ گومت پتہ گومت ماستر بٲے سٕنٛدِ کامہِ پٮ۪ٹھ حظ تمہِ پتہٕ حظ ووٚتھ یہِ گوٚمُت اوس تٔمۍ سٕنٛزِ کامہِ پٮ۪ٹھ پتہٕ اوس یہِ ووٚتھمُت کھوٚتمُت اوس تتھ پٮ۪ٹھ پالس پٮ۪ٹھ اوس کھوٚتمُت پتہٕ اوس ٹھیکدرن بیٚیہِ کھولمُت ژٕ کھس اتھ پٮ۪ٹھ بیٚیہِ اَسہِ دِیِو اِنصاف اَسہِ دِیِو سُہ برٛونٛہہ کِنۍ ییٚمۍ سُہ کھول تتھ پٮ۪ٹھ. اس ماں کا بیٹا اور اس بہن کا ہونے والا شوہر اس دنیائی فانی سے رخصت کر گیا. آپ کو بتانا چاہوں گا اس ماں کا لخت جگر جس کی عمر 24 سال کی تھی وہ اپنے وہ اپنے روزگار کے لیے سری نگر کام کرنے کے لیے گیا تھا. وہاں پہ الیکٹرک شاک لگنے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی. حالانکہ مبینہ طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جس کمپنی کے ساتھ میں وہ کام کر رہا تھا اس کمپنی نے ایک بڑی لاپرواہی برتی کہ انہوں نے اس نوجوان کو ایکچوئل لائن میں یعنی کہ جس لائن میں بجلی کا کرنٹ چل رہا تھا جس میں بجلی موجود تھی اسی لائن پر کام کرنے کے لیے بول دیا جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی. یہ بہن مرحوم یہ بہن اس کی پتنی ہونے والی پتنی تھی یعنی کہ چند دنوں کے اندر اب شادی ہونے والی تھی. انگیجمنٹ ہو چکی تھی لیکن شادی ہونے سے پہلے ہی نکاح ہونے سے پہلے ہی وہ اس دنیائی فانی سے رخصت کر گیا. میں ان سے ہی بات کرنا چاہوں گا کہ مجھے تو ونس میں کیا معاملوں کو کیا بوزتے کتھ حدس تین بہت گھر بہت مے بہت 1 بجے فون دبک سہ لوگ پاورس مے دم مے سہ ٹھیک دبک نا بہس بہ کور پتہ صبر پتہ آئی کٹ مے پرس کٹن کیا دلیل دبک اس پکان ڈیرس پہ گھر یون ٹھیکدارن واپس جین دپنس ژٕ کھس یتھ لاگ یہ نہ دتنس گلاز نہ دتنس وردی نہ کی ام دپنس مے چھ تور لگمت بہ نیر ڈیرس پہ دپنس نا ژٕ کھس کھولن یور یہ پیو ؤسِتھ یہ لوگ پاورس تم کو ٹک سہ ژول میون گوبر گویل تتی دڑت بس مے دیو تم سہ دن مے ژٕ میٲنس گوبر گویل کر بہ تمس ضرورت کی انصاف بس سہ نکرن بہ یہ پتہ میون نچو کھول نیا ویس میون نچو کھولن پاورس تت دتن دڑت کیاز کھولن اگر سہ درامت اس واپس کیاز پھرن تم کیاز پھر سہ واپس اگر سہ درامت او ڈیرس پہ واپس گھر ان خاطر کیاز پھرن واپس نہ دتن سامان نہ کی اتھے کنن کھولن ویس اس محمد بہ کیا کر وہ یوتے چھ پتہ پتہ تمن پتہ یم تت کھڑا اس تم نے پرسیو تو ایک آئی وٹنس ہمارے ساتھ ہے ان سے بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے. تھی امس ستھ رات تھی میڈیا پہ آمت سری نگر تو تھی ورنو پور کیا دلیل کیا گئی اس وون آلریڈی سٹاٹس اس دیو 11 کے شٹ ڈاؤن ہمو دک یہ گھس بٹوار تھوگمت ٹائم دک بٹوار شٹ ڈاؤن تو اس آئی بٹوار کامہ پہ اس دن شٹ ڈاؤن کہ وہ ایل ٹی نوان شٹ ڈاؤن اس کران بن کم اس ایل ٹی شٹ ڈاؤن اس کر 4 ٹرانسفارمز کمپلیٹ چارج تو تم کر ٹھیک ریپیر کر تو وہ گئی پوٗژِم تہِ کوٚر تہٕ وہ گئی 6 پٮ۪ٹھ تو اس کوٚر تتھ پاور ریسٹور پوٗژمِس کوٚر پاور ریسٹور گئی 6 پٮ۪ٹھ تو یہ آئی جے یہ گو بیٚیہِ ووت پوٗژمِس نِش دوٚپُن اتھ تاز معموٗلی کیٛاہ آرن کی ہارن پٮ۪ٹھ سۄ ٲس تھوڑا حج یہ آئی جے امس بُلو یہ ہٹ ڈی ٹی آر نش امس کھول یتھے کن نہ وون امس ژٕ کتہِ ایچ ٹی گلوز نہ وون امس ژٕ کتہِ سیفٹی بیلٹ نہ وونس ژٕ کتہِ ہیلمٹ کانٛہہ چیٖز نہ شٹ ڈاؤن نہ وجن پان لِنک تس کٲم یی تس نفرس نظر تھاوٕنۍ تس پان لِنک والٕنۍ کیٛازِ تِمو یہے سروس کٔرمٕژ تہٕ تِم کوٚر نہٕ تتھ کِہیٖنۍ تِم کھول یتھے کن ہیوٚر یہِ لوٚگ پاورس پتہٕ دِتۍ تِم کریک سُہ ژوٚل پان اس وولو سُہ اوس تۄہہِ کوٚروٕ تتہِ پتہٕ پُلیٖسس ایف آی آر وغیرہ کوٚروٕ بیٚیہِ کمپنی وٲژٕس تۄہہِ نِش کِنہٕ کمپنی وٲژ نہٕ کینٛہہ البتہ انجیٖنر سایڈ انجیٖنر تتی بیٚیہِ اوس ٹھیکدر پنُن بس تمو نیوٗکھ حظ کانٛہہ ایکشن تم گٔیا پُلیٖسس نِش تۄہہِ سۭتۍ اہن حظ اسہِ سۭتۍ ٲسۍ تِم پُلیٖس ٹھیکدر اوس مےٚ سۭتۍ تہٕ أسۍ حظ گٔے پُلیٖسس نِش تہِ تو تمو کر پولیس لسٹ تمو کرے سر فون تمو دوٚپُکھ أسۍ چھِ کران کاروٲیی تہٕ انشاءاللہ أکِس 2 دۄہن تامتھ انون یہ لاپرواہی سراسر جی اہن حظ جان بوجھ کر انہوں نے بندے کو لائن پہ چڑھا دیا پول پہ چڑھا دیا جس میں الیکٹرک کرنٹ تھا. جی سر
اور आपने और अभी तक डिपार्टमेंट की जानिब से कोई मुलाजिम यहाँ पे आया अपने एडमिनिस्ट्रेशन में कोई यहाँ? कोई नहीं आया। अच्छा कोई नहीं है, सिर्फ ठेकेदार। तो आपकी क्या अपील है आपकी जानिब से? बस हमें इंसाफ मिलना चाहिए। अच्छा इंसाफ मिलना चाहिए। ये गलती सिर्फ उसी की है, उसका नाम है आसम। अच्छा वो जई है, हाँ वो जई है, TTIC वाला है। तो बिना शट डाउन उसने कैसे चढ़ाया लेबर को? तो नाज़रीन देख लीजिए, ये दिल को तार तार कर देने वाले जो मैं आपको सीन दिखा रहा हूँ, ये हायहमा जुगटियाल की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक बहन खून के आंसू रो रही है और एक माँ अपने लगते जिगर के लिए रो रही है, जो लगते जिगर अब इस दुनियाई फानी से रुखसत कर गया और जो लगते जिगर अब इस माँ को नहीं मिल पाएगा। वो 24 साल का नौजवान अपने घर की रोजी रोटी कमाने के लिए श्रीनगर गया था, एक प्राइवेट कंपनी में काम करने के लिए, जो कंपनी इलेक्ट्रिक लाइन्स या इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर्स के साथ में काम करती है, उनको चार्जिंग या लाइन रिपेयरिंग का काम करती है वो कंपनी। उसी कंपनी में ये इनका बेटा या इस बहन का होने वाला पति काम करने गया था, लेकिन बताया जाता है या मुबाइना तौर पे मैं कहूँगा कि उन्होंने दिन में अपना काम खत्म किया था, लेकिन लास्ट पे जब वो उस काम से लौट रहा था तो जेई ने उनको वापस बुलाया कि बोला कि कोई काम रह गए वो करके दे दो। लेकिन जो ही वो लाइन ठीक करने के लिए गया, बदकिस्मती से उस लाइन में इलेक्ट्रिक करंट था और उस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से उसको मौत हो गई। और अगर जेई ऑन स्पॉट था, क्या जेई को ये नहीं देखना था कि क्या इस लाइन के अंदर पावर है या पावर उसको पहले डिस्कनेक्ट नहीं करवाना था? क्या उसको, उस शख्स को, उस नौजवान को सेफ्टी गार्ड, सेफ्टी ग्लोव्स या बाकी चीजें, बेल्ट जो होती है, हेलमेट वगैरह जो चीजें होती है वो देनी चाहिए थी। और ये भी बताया जा रहा है कि वो नौजवान जब लाइन ठीक करने के लिए गया था, न उसके हाथ में ग्लोव्स लगे थे, दस्ताने लगे थे, न उसके पास किसी भी तरीके का कोई भी सेफ्टी मेजर नहीं था, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट लगी और उसकी मौत वाक़या हुई। और ये बहन जो है, ये जो रो रही है, इस वक्त भी ये बहन रो रही है। एंगेजमेंट 6 महीने पहले हुई थी, अब चंद दिनों बचे थे शादी होने को, लेकिन बदकिस्मती से एक ऐसा सानिया पेश आ जाता है, एक ऐसा सीन, एक पूरे इस इलाके में मातम छा जाता है। इनका होने वाला पति इस दुनियाई फानी से रुखसत कर जाता है और ये माँ कब से रो रही है, ये पुकार रही है कि मुझे इंसाफ चाहिए, क्योंकि इस घर का अब कुछ भी बाकी नहीं रहा है। वही नौजवान इस फैमिली का सहारा था, उसी की वजह से इस फैमिली का गुजारा हो जाता था, इसीलिए वो घर से चला गया था, लगभग 100 किलोमीटर दूर चला गया था अपने घर की रोजगार के लिए, इस माँ बाप के लिए कि इस माँ बाप को कमा के कुछ दें, या इस बहन को जिसके साथ में उसकी शादी होने वाली थी उसके लिए। लेकिन बदकिस्मती से वहां पे लापरवाही की वजह से उसकी मौत वाक़या हुई। यानी कि जेई ने, मुबाइना तौर पे ये कहा जाता है कि जेई ने उसको पोल पे चढ़ा दिया या उस जगह पे चढ़ा दिया जहां पे बिजली थी, बिजली का करंट था, और उस करंट की वजह से उसकी मौत वाक़या हुई। हालांकि अलमिया ये भी है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुपवारा में अभी तक इनके पास कोई आला ऑफिसर नहीं आया। हालांकि MLA जो हमारे हैं वो भी यहाँ पे नहीं आते। इनका मानना ये भी है अगर वोट देने की बात होती, वोट लेने की बात होती, शायद अभी तक हमारे पास कोई आता, लेकिन बदकिस्मती से वो इनका लगते जिगर उसको दफना भी दिया, उसको इस दुनियाई फानी से रुखसत भी कर दिया, लेकिन कोई अभी तक नहीं आया। अब ये फैमिली जो इस वक्त बेकस बेसहारा मजबूर हुई है, अब इस फैमिली का ये किसको अपनी दादो फरियाद सुनाएगी? मजी में वनस की तासन बगैर कुछ ओसु तई फैमिली बस यो ओसम सार यो ब्याख छु मगर सु सिउद सु छन की यो ओसम सारी घर पकनावा ओ यो ओसम सोरी की करा लोइन दड़े जमीन बैठ में क्या कर वो मैं क्या छु जरूरत में गस गोबर सुकाती हूं वो मैं ची गोबर रोमन सुकाती हूं वो मैं भाई मैं ची जखम लोग मत सुकाती हूं वो युद्ध गोबर में ना बनी न कुछ
मोल लजो मोल दमो टेंशन में रात मुते दिमाई मोल लजो घर सेंट्रल उसका करा मोल लजो घर की खानदारा मोल लजो खानदारियों समा करा मोल लजो मोला चो सफेद मुंड सिक्यो कर वो मैं खुदायो तस न कुन गवान सना शन वो हेका मजूर कर मैं यूत यो सार मी क्यों गो वो मैं भायो वो। तो नाज़रीन, ये माँ खून के आंसू रो रही है, मुनासिब नहीं समझूंगा मैं, इससे ज्यादा बातें करूंगा मैं, लेकिन ऐसे खबरों से, ऐसे जब इस तरीके के सानिया पेश आ जाते हैं, दिल फट जाता है, दिल तार तार हो जाता है। क्योंकि ये घर जो आप देख रहे हैं, एक छोटा सा आशियाना जो आप देख रहे हैं, इसी आशियाने को उस बच्चे ने, जिसकी उम्र 24 साल की थी, इस आशियाने को बनाने में उसने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। जितना उससे हो सका था उसने इतनी कोशिश की, ये आशियाना खड़ा किया था। लेकिन आज वो अपने माँ बाप की रोजी रोटी के लिए, वो अपने होने वाली पत्नी के लिए, वो यहाँ से काम करने के लिए चला गया था श्रीनगर, और वहां पे उसकी मौत वाक़या हुई। मुबैना तौर पे ये कहा जाता है कि ये जेई की लापरवाही है, लेकिन जो जेई होता है उसका काम यही होता है कि अगर मुझे कहीं पे भी कोई एम्प्लॉय साथ में, मतलब लेबर साथ में, तो उनकी देख रेख करना, उनको काम देना, उनको वो काम देना जिस काम की वजह से किसी की मौत ना हो जाए। लेकिन कैसा जेई था ये, और किस तरीके का ये, मैं कहूंगा कि गाइड था, कि इसने बंदे को, एक इनके लखते जिगर को उस लाइन पे चढ़ा दिया, उस इलेक्ट्रिक के खंबे पे चढ़ा दिया जिस में बिजली का करंट चल रहा था। क्या उसको करंट पहले बंद नहीं करवाना था? क्या उसको पहले वो लाइन डिस्कनेक्ट नहीं करवानी थी मेन ग्रिड स्टेशन से, मेन रेसिंग स्टेशन से? लेकिन क्या करें कि ऐसे लापरवाह शख्स जब होते हैं तो ऐसी घटनाएं घटती है। ये पहला ही केस नहीं है, इससे पहले और बहुत सारे मसले हुए जिनमें कई लोगों की जान चली। क्या जंग पुट अच्छा, इन्हीं कंपनियों कंपनी तस गो आज लगभग कोतस गोस रेतस गोस आज डोड रेतस गोस अच्छा तस प्रोसिक्यूशन के सोच के रोड मो नेम बिचर घर करा शो सीता इलाज कंपनी कैसे ना? अच्छा, आपके पास है तहिनी सोच से यूज दपा बी किसी जंग फुटमस। एक्चुअली मैं 1 साल पहले ही मेरे साथ ये लड़का काम कर रहा था। ये लड़का जिसकी डेथ हुई 1 साल पहले मेरे साथ था, पूरे 1 साल तक था। बिल्कुल काम ठीक तरीके से चल रहा था, मगर एक्चुअली ये जो कल जो हादसा हुआ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले जेई को शट डाउन लेना था, उसके बाद काम करवाना था। और अगर शट डाउन भी नहीं ले, सेफ्टी बेल्ट, ग्लोव्स इसके लिए आ रहे हैं, शूज आ रहे हैं इसके। हम भी दूसरी कंपनी से काम कर रहे हैं, दूसरी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, उन्होंने हमें पूरा सब कुछ सामान दे दिया, तो हमें वो खतरा नहीं लग रहा है जैसे ये कि खाली हाथ ऊपर चढ़ाते हैं इनको। अगर वो नहीं दे सकता, कंपनी नहीं दे सकती, तो ठेकेदार तो अपने जेब से नहीं ला सकता है। ये तो इस वक्त सारे ठेकेदार के हाथ में है, ठेकेदार के सर पे। मैं भी वहाँ काम कर रहा हूँ। एक लड़का 1.5 महीने पहले पोल से गिर गया, उसकी टांग टूट गई, उसको 1 महीने से हम चला रहे थे उधर। उस बेचारे को कोई नहीं पूछ रहा था, खाना पीना सब कुछ हम दे रहे थे उसको, उसके पास कोई नहीं आया। एक ठेकेदार भी गलती है, वो क्यों नहीं आ रहा है उसके पास, उसका देखभाल भी करना चाहिए। उसी के इस काम पे गिर गया वो लड़का भी। सरासर इस कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेटर है ये लापरवाह है। हाँ, कंपनसेशन मिलना चाहिए। ये कंपनी की लापरवाही है और एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही। इनको कैसे दे रहा है ये? हम प्राइवेट कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, हम ठेकेदार के साथ काम नहीं कर रहे हैं। हमें इन कंपनी का जेई दिखाएगा कहाँ फॉल्ट है, कहाँ क्या है। डिपार्टमेंट का आएगा, वो कंपनी की जेई को पूछेगा, कंपनी से पूछेगा यहाँ फॉल्ट है, ये ठीक करो। वो डायरेक्ट किसी मजदूर को ऊपर नहीं चढ़ा सकता फांसी पे, ये गलत है। ये उस जेई पे। इस कंपनी का क्या नाम था? गोपी कृष्ण। गोपी कृष्ण। हाँ, गोपी कृष्ण। ये बाहर की कोई कंपनी है, प्राइवेट। तो नाज़रीन, आपको बताना चाहूंगा मैं, ये जो गोपी कृष्णा जो बाहर की कंपनी है, जो बिजली के लाइनों को बहाल करने या बिजली के सप्लाई को या बिजली के निज़ाम के साथ में ये काम कर रही है। इसके साथ में कई सारे लेबर काम करते हैं, गांव से उठा के ये लेबर ले जाते हैं और वहाँ पे काम करवाते हैं। लेकिन बदकिस्मती की वजह से ये लोग जो है ये लापरवाही करते हैं, जिसकी वजह से आज एक नौजवान की मौत वाक़या हुई जिसकी उम्र 24 साल है। और इस वक्त मैं इनके घर पे मौजूद, आप देख लीजिए यहाँ पे किस तरीके से मातम छा गया है।
اور यहाँ पे अभी अभी MLA फयाज अहमद मीर साहब जो है वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं, जो इनके घर में अब इनसे मुलाकात हो जाएंगे। लेकिन आप देख लीजिए किस तरीके की तस्वीरें, और यहाँ पे बिल्कुल मातम छा गया है। फयाज साहब अब आए हैं अंदर और यहाँ पे आप देख लीजिए माहौल कितना है, मातम छाया हुआ है, रंजो गम का माहौल, हर एक की आंख नम है, क्योंकि एक माँ का लखते जिगर जिसकी उम्र 24 साल है और उसकी मौत वाक़ई हुई बिजली करंट लगने की वजह से। यानी कि आज उसकी बॉडी जो है वो इनके घर पे पहुंचे और उसको दफना भी दिया, लेकिन बदकिस्मती की वजह से अभी तक यहाँ पे कोई नहीं आया था। लेकिन इस वक्त जो MLA कुपवारा फयाज अहमद मीर साहब पहुँचे, लेकिन फैमिली गुहार लगा रही है, फैमिली अपील कर रही है कि हमें कंपनसेशन ज़रूरी मिलना चाहिए और इस कंपनी के खिलाफ में ज़रूरी कार्रवाई होनी चाहिए, खासकर इस जेई के खिलाफ में, जिस जेई ने एक 24 साल शख्स की जान लेने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, क्योंकि इसने कैसे एक बंदे को पावर डिस्कनेक्ट किए बिना लाइन पे चढ़ा दिया या लाइन ठीक करने के लिए बता दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़या हुई। उस जेई के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उस कंपनी के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिस कंपनी की वजह से इस एक लखते जिगर इस दुनियाई फानी से रुखसत हो गया। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि एक हादसा इससे पहले भी उस कंपनी में पेश आया कि एक शख्स की टांग टूटी, एक लेबर की टांग टूटी, लेकिन उसका भी इलाज वो मौलजा अभी तक नहीं किया गया और उस कंपनी ने उसको उसी हाल पे छोड़ दिया जिस हाल पे वो था। हालांकि ये मैं नहीं, ये यहाँ के लोकल बता रही है कि वो लड़के बता रहे जो लड़का वहाँ पे काम कर रहा था, ये कह रहा था कि जनाब एक लड़का इससे पहले भी वहाँ पे नीचे गिर गया जिसकी टांग टूटी और उसको इलाज मुआवजा के लिए कंपनी सामने नहीं आई। कैसी कंपनी, किस तरीके से ये लोगों को ले जाते हैं, नौजवानों को ले जाते हैं, बाद में जब नौजवानों के साथ में किसी भी तरीके का कोई हादसा पेश आ जाता है फिर उनको रोता हुए छोड़ देती है, उनको ऐसे बिलखते हुए तरसते हुए छोड़ देती है। तो हमारी भी हुकाम बाला से दरख्वास्त है कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, उस कंपनी पे भी कार्रवाई होनी चाहिए और जेई के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये जो मैं कहूँगा ये एक तरीके का मर्डर केस ही है, किसी को मारना, किसी की मौत वाक़या हो जाना, किसी को लाइन पे चढ़ाना, फिर उसको ये नहीं बताना कि पहले पावर को नहीं डिस्कनेक्ट करवाना और आंख बंद करके किसी भी लेबर के साथ में कोई काम करवाना, ये ज्यादती है, ये एक तरीके का मर्डर है। तो इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हालांकि इसमें FIR दर्ज किया गया है, लेकिन FIR दर्ज करने के बाद में इस पे इस तरीके की इन्वेस्टिगेशन, इस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए कि इस फैमिली को जो है कंपनसेशन मिलना चाहिए। आप दीजिए इजाज़त अपनी मेज़बान वाहिद मसूदी को। खुदा हाफिज।